ये है कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा शहर मॉन्ट्रियल। और आज की इस वीडियो में हम लोग खासकर जानने वाले हैं हॉस्टल के बारे में। आप नॉर्थ अमेरिका आते हैं, कनाडा आते हैं, तो सभी जो होटल और हॉस्टल हैं बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने हॉस्टल लेकर चलता हूं, जहां पिछले 10 दिनों से मैं रुका हुआ हूं। और इस हॉस्टल के बारे में हम लोग जानते हैं, सुविधाओं के बारे में जानते हैं। ये मॉन्ट्रियल का सबसे चीपेस्ट हॉस्टल है और डाउनटाउन एरिया में है। सारे जो सबवे एक्सेस हैं वो इस हॉस्टल के आसपास है। किसी भी लाइन से आप निकलेंगे, आपकी हॉस्टल की वॉकिंग डिस्टेंस 5 से 10 मिनट पर है। तो बहुत ही सुविधाजनक ये हॉस्टल है। और यहाँ पर पिछले 10 दिनों की मेरी क्या लाइफ है, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं बताता हूँ जिससे आपको आसानी हो जाए कि आप मॉन्ट्रियल विजिट करते हैं या कनाडा आते हैं तो हॉस्टल किस तरह के रहेंगे। ये है मेरा हॉस्टल। And the Mongolia is a natural park. It's very beautiful to visit too. And we have recommendations to drink, eat, and dance here. And you can find in the tags in the map. Oh, great. Yes. What's that? Oh, that's. Our recommendation the tags. ये मेरा फर्स्ट डे है हॉस्टल में। और जैसे ही मैंने एडमिट किया, यहाँ का जो फ्रेंडली स्टाफ है उन्होंने मुझे शहर के बारे में, हॉस्टल के बारे में, आसपास की गतिविधियों के बारे में और आसपास जो भी अट्रैक्शंस हैं उनके बारे में और सारी जो जानकारी एक स्ट्रेंजर को नए शहर में आवश्यक होती है उन सब के बारे में जानकारी दी। और इसके बाद उन्होंने मुझे पूरे हॉस्टल को विज़िट कराया कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं होती हैं और क्या क्या आप यहाँ पर कर सकते हैं हॉस्टल में। तो चलिए चलते हैं बेसमेंट में। बेसमेंट में जो है वो बार है और रेस्टोरेंट है, म्यूज़िक कॉन्सर्ट यहाँ पर होता है। Oh, that's. This for what? Is the beer. I don't drink this one. Margarita party on the rooftop, Yes, I'm going to show you that. but only in summer or 1 week, but only 2 weeks. Okay, okay. And you? I'm up to 22nd. Up to 22nd. Okay, okay. 9 days. Oh, perfect. Tomorrow we have a preacher to the Mongolia. You only need to arrive here to the lobby at 2 p.m. and you can go with the group. Yeah. And we have free pasta the Wednesday. A lot of things. You can follow here. Activities. If we have a small cafe, you can take a drink and food here. And this one for work if you want to work a little bit. Here we have 2 computers with internet you can use for free. You need to search something. And a bathroom there. If you smoke, this is the only area for smoking. Okay.
open 7 a.m. and close at 11 p.m. The breakfast is included in your residency and it starts to 7 a.m. and finish at 11 a.m. Okay? After that, you can cook wherever you want in the kitchen. It's free. You only need to blend your stuff that you use. And if you want to put something in the fridge, you only need to put in a bag and type your name and your checkout date. And you can use all the kitchen. Perfect. You have bathrooms and here in the corner we have a laundry. You need to bring your clothes. It's good. Open at 7 a.m. and costs $3 to clean and $3 to dry. Chinese in this area. This is the Okay. yes. For choose your bed, you have the color card. Mm-hmm. You need to search a bed without color card. If the bed have a color card in front, it's because it's occupied. Okay? Yes, this is the color card. And this is yours. Awesome. With the white you open, Mm-hmm. and here Okay. you need to put the color card. If the bed have one of these, because it's occupied. Okay? Okay. So which one is that? You can take this or I want to be. Is there no the down one, bottom one? if the bed don't have a card, you can take Oh, it. I can take it. Yes. Okay. Thank you. Okay. Mm-hmm. This is your Thank you. Thank you. सो नेक्स्ट 10 डेज़ मैं यहाँ पर स्टे करने वाला हूँ और पर नाइट का $30 है. सो नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए मैंने पे किया है 300 इंक्लूडिंग टैक्स समथिंग 360 और उसके हिसाब से ये बहुत चीप हॉस्टल है. इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है. सारे जो मेट्रो बस सब वॉकिंग डिस्टेंस पर है और मॉन्ट्रियल की जो कैथरीन स्ट्रीट है सबसे पॉपुलर स्ट्रीट है वो वॉकिंग डिस्टेंस पर है. और आपने देखा और भी सुविधाएं इस हॉस्टल में है जिसको हम चलकर देखते हैं. और देश दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर. सब बैकपैकर्स होते हैं, यंग होते हैं, उनसे मिल के और एक नई वाइब्रेशन मिलती है. तो एक राउंड लेने के बाद हम लोग आ गए हैं वापस अपने बंक बेड एरिया में और थोड़ा सुकून से मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ के जो बंक बेड होते हैं हॉस्टल में किस तरह से होते हैं. ये 13 से 14 लोग यहाँ पर स्टे कर सकते हैं. सभी के प्राइवेसी के लिए कर्टेन्स है. एक ऊपर बेड है, एक नीचे है. मेरा जो बेड है वो नीचे है और काफ़ी स्पेसियस है. आपको ऐसा कंजस्टेड लगेगा नहीं. और यहाँ का जो स्टाफ है वो इसको पूरे वक्त नीट एंड क्लीन रखता है. हर दिन सफाई होती है. जो चादर है तो पिलो कवर है चेंज होते हैं और टॉवल आप ले सकते हैं जब आपको चाहिए फ्रेश. स्टोरेज के लिए भी काफ़ी कुछ इसमें सुविधा है और स्टोरेज आपको जो छोटे
स्टोर करने के लिए, बिलोंगिंग रखने के लिए ये सामने है, इसमें आप रख सकते हो। ये आपकी पर्सनल लाइट है रीडिंग के लिए, और काफ़ी स्पेस है एक व्यक्ति के हिसाब से, आप देखेंगे। और लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते, काफ़ी शांत रहता है। जब को मोस्टली जैसे जिसको जाना होता है अर्ली मॉर्निंग, तो वो अपनी तैयारी पहले ही करके रखता है ताकि रात में उसको पैकिंग ना करनी पड़े। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लोगों में रहती है, अच्छी बात है। तो लंबे समय के लिए आपको रुकना है, कम बजट में रुकना है, उसके हिसाब से बेस्ट है। ये आपका एक नीचे का स्टोरेज है जिसमें आप सूटकेस, बैकपैक, शूज़ या जो भी आपको रखना है वो रख कर आप इसमें लॉक रख सकते हैं। इधर एक छोटा और स्टोर, इसमें भी आप अपने शूज़ वगैरह रख सकते हैं। कर्टेन लगा के आराम से आप सोइए, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो आइए बंक बेड दिखाने के बाद अब हम लोग चलते हैं किचन एरिया में, और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ कुकिंग। और मैंने काफ़ी ग्रॉसरीज इकट्ठी की हुई है यहाँ पर स्टोर करके, क्योंकि फ्रीज़र है और पास ही में काफ़ी सारे स्टोर्स हैं। इंडियन स्टोर से जाकर भी मैं ग्रॉसरी लेकर आया हूँ। सो लेट्स गो टू कुकिंग। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ बनी रहती है, और हॉस्टल का बस यही एक फ़ायदा है कि आप ही जैसे काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, बैकपैकर्स होते हैं, और वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। हॉस्टल में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ बनी रहती है हमेशा, और यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया जाता है कि इस हफ्ते भर की जो भी उनकी गतिविधियाँ होनी है या आज क्या क्या उनका प्रोग्राम है, वो सब बोर्ड्स पर लिख देते हैं। और उसमें लोग चाहें तो इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसको हॉस्टल में रुकना है, और या फिर जिसको घूमने जाना है तो वो बाहर जा सकता है। इस तरह से मुझे हॉस्टल का जो माहौल है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आप बोर नहीं होते हैं। आप किसी भी नए शहर में हैं, बाहर हैं, और भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर बनी रहती है। नीचे बेसमेंट में जो है वो पूल गेम्स है, म्यूज़िक कॉन्सर्ट चलते हैं शाम को, और फ्री इंटरनेट है, कंप्यूटर है, आप पूरे वक्त एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि जब हम बाहर होते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो कई बार हम लोग अपना लैपटॉप वगैरह कैरी नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे में जो डाटाज़ है वो ट्रांसफ़र करना, और आपको ईमेल्स वगैरह चेक करना, और काफ़ी कुछ जो नए अट्रैक्शंस है, क्या क्या नए शहर में आप जा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए अपना ये फ्री हॉस्टल में कंप्यूटर है और वाईफाई तो है ही, जो आपको पूरे टाइम एक्सेस आप कर सकते हो। अमेरिका और कनाडा में जो हॉस्टल होते हैं अमूमन इसी तरह के होते हैं, और मुझे ज़्यादा लंबे समय तक रुकना होता है, ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी होती है जगह जगह, तो मैं यही ऑप्शन चुनता हूँ। चलिए आज हम लोग चलते हैं किसी नए जगह पर वीडियो बनाने के लिए, और शाम को हम लोग मिलते हैं वापस इसी हॉस्टल में।
हॉस्टल के बेसमेंट में म्यूज़िक कॉन्सर्ट चल रहा है और वहाँ पर चलते हैं। चिल करने के लिए काफ़ी एक अच्छी जगह है शाम के वक्त। सो लेट्स गो देयर। I should go to the website, but like I was looking at how like I had like a coupon or something, so it's like, oh, you were booking, but like they ran out of the floor first to bring like the day after, so like I looked up like the hotels and I was like, I'm gonna do the hostel, like I waited to buy my flight. हम लोग आ गए हैं इस वक्त छत पर, और छत पर जो है वो 2 जकूज़ी है गर्म पानी की। उसके ये रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, इनको फॉलो करना होगा। ओपन में जकूज़ी है। हॉस्टल में अमूमन होती नहीं है जकूज़ी, लेकिन यहाँ पर है, ये फैसिलिटीज़ है। और जिस तरह से नीचे बेसमेंट में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ बनी रहती है, यहाँ भी शाम के वक्त रात में एक गेट टुगेदर रहता है, लोग आते हैं। और ओपन में गर्म पानी की बात लेना, ये भी अपने आप में एक आनंद है। तो देखिए कितना साफ़ नीट एंड क्लीन पानी है जकूज़ी का, और उसको ढक के रख दिया जाता है ताकि पानी गर्म बना रहे। शाम के वक्त यहाँ पर बाथ लेना और फिर शहर का व्यू वाकई एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र बन जाता है। और ये डाउनटाउन मॉन्ट्रियल है। हॉस्टल की छत के ऊपर हम लोग हैं और सुबह का वक्त है। सुबह के वक्त में यहाँ पर अमूमन कोई होता नहीं है, लेकिन शाम को बहुत चहल पहल और लोगों की गेट टुगेदर रहती है। मॉन्ट्रियल जो शहर है वो कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, क्वेबेक की राजधानी है और फ्रेंच स्पीकिंग सिटी है। कनाडा विज़िट के बारे में, वीज़ा के बारे में और हॉस्टल के बारे में और ट्रैवलिंग के बारे में जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, आप मुझे लिखिएगा, ईमेल कीजिएगा। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। और मोस्टली जो मेरे वीडियोस हैं वो ट्रैवलिंग के हैं, इवेंट्स के हैं, डे टू डे लाइफ के हैं, और चैनल पर वो अपलोड है। बहुत डिटेल और इन्फॉर्मेटिव मेरे वीडियोस हैं, आप उन पर विज़िट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा।